This is the question bank for chapter 2 of chemistry paper 1 FYBSc पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन two or more electrons with the same spin change places within orbitals of same energy। यहाँ पे आप लोग जब आंसर लिखेंगे सिर्फ within orbitals लिखना काफ़ी नहीं है, it should be orbitals of same energy, ये important है। Where is the position of S block elements in the periodic table? S block occupies, elements occupy groups 1A and 2A। इसकी जगह पे आप ग्रुप 1 2 भी लिख सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल एंड लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इट ऑक्यूपाइज 3A to 8A। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 13 to 18 ऑल्सो इन द पीरियोडिक टेबल एंड इट लाइज टू द राइट ऑफ द डी ब्लॉक। तो आपके एस ब्लॉक जो है डी ब्लॉक के लेफ्ट में होते हैं, पी ब्लॉक आपके डी ब्लॉक के राइट में होते हैं। तो ऑब्वियसली जो डी ब्लॉक होगा एस और पी के बीच में होगा। डी ब्लॉक ऑक्यूपाई बी ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3rd to 12th, वो भी चलेगा, एंड लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्यूपाई अ पोजिशन बिटवीन 3rd B and 4th B groups in the periodic table and are normally placed in two separate rows below the main part of the periodic table. Ionization energy, what is it? Ionization energy, by the way, and ionization potential, they are one and the same thing. So ionization energy or ionization potential, okay, यहाँ पे दो बार आ गया है, potential is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an atom in its free, gaseous and ground state. Electronegativity क्या है? It is the tendency of an atom to pull the bonded pair of electrons towards itself in a covalent bond. Electron affinity is the change in energy, which means it's either the energy released or gained. Electron affinity is the change in energy, again change यहाँ पे दो बार आ गया, is the change in energy when when an electron is added to a neutral gaseous atom to form a negative ion. Aufbau principle states that an electron are filled in the orbitals in terms of their increasing energy. Hund's rule. While filling of electrons in degenerate orbitals, all the orbitals are first singly occupied before the electrons start pairing up. यहाँ पे again the important term is degenerate orbitals of the same energy. Pauli's exclusion principle. No two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers equal. यानी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों में से एक तो कम से कम अलग होना चाहिए। Screening effect. The effect where the inner electrons shield the valence electrons from the pull of the nucleus and thus reducing the force of attraction between the nucleus and the valence electrons is called screening or shielding effect. Oxidation state, it is the number numerically equal to the charge and sign of the charge which the atom of the element appears to have acquired when it is in combination with atoms of other elements. ये हो गया आपके short answers. Now these are long answer questions. Okay, Slater's rule है ये, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट हम लोग डिस्क्राइब तो कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के स्लेटर्स रूल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी एटम है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप क्या करेंगे, अब 1s में तो 1p होता नहीं है, सो यह 1s उसको एक ब्रैकेट में डालेंगे, देन 2s 2p इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे, अगला आता है 3s 3p अलग ब्रैकेट में, 3d। ये ब्रैकेट इज ओनली फॉर द स्लेटर्स रूल के लिए,
नहीं तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू डोंट पुट दीज ब्रैकेट्स। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ऑल दिस 3D 4D 4F इन सबको नेग्लेक्ट करना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जिसमें 1S या 2S या SP है जिसमें, सो आर इम्पॉर्टेंट ब्रैकेट्स आर 1S 2S 2P 3S 3P, 3D को इग्नोर करना है, 4S 4P 4D 4F दोनों को इग्नोर करना है, 5S 5P। Identify all NS NP electrons and ignore the remaining electrons as they do not contribute to the screening constant। तो 4D और 4F की वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि सारे D और सारे F जो है इनको नज़रअंदाज करना है। देन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ दैट। सपोज हमको ये निकालना है कि 3P पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3P से जो अंदर है इन सबको लेना है और 3P के जो बाहर है सबको इग्नोर करना है, क्योंकि जो बाहर है वो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सपोज आपको अब सपोज 4S का करना है, तो 4S के अंदर आप क्या क्या है, 3D वो तो कुछ होता नहीं है, वी इग्नोर 3D, सो यू विल टेक इनटू अकाउंट 1S 2S 2P 3S 3P और 4P क्योंकि 4S के बाहर है, विल इग्नोर दिस। सो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट से आप लेफ्ट साइड को इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कंसिडरेशन में लेना है, ऑल द राइट हैंड साइड हैज़ टू बी इग्नोर्ड एंड ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड में जो D ऑर्बिटल्स हैं F ऑर्बिटल्स है उनको इग्नोर करना है। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज इन NS यानी सपोज 4S में है, तो ऑब्वियसली 4P इग्नोर हो जाएगा, उसके बाद 4S के अंदर क्या क्या बचा, 3D इग्नोर हो जाएगा, देन यू हैव 1S 2S 2 ये सारे हो जाएंगे। नाउ अब 4S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब हो सकता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि 4S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सो हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4S2 हो 4S1 हो। सपोज इफ इट इज 4S2, तो 4S का जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इट विल कंट्रीब्यूट टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट इज इन NS, इग्नोर द NP इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, उसका जो ऊपर का P है उसको भी इग्नोर करना है। द रिमेनिंग NS इलेक्ट्रॉन यानी 4S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो बचा होगा एक, इट विल कंट्रीब्यूट 0.35, अगर एक होगा तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। एंड अगर हम लोग सपोज हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हम लोग 1S के बारे में, अगर इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट इन 1S2 है तो आप एक इलेक्ट्रॉन का तो आपका कंसिडरेशन है, आपके पास उसको छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन बचा, इन दैट केस फॉर 1S इलेक्ट्रॉन द वैल्यू इज 3, फॉर एनी अदर NS it is 0.35. If the electron of interest is NP यानी 2P या 3P या 4P, then obviously your 2S cannot be ignored. Then the remaining electrons in the NS NP will contribute 0.35 to the screening effect. N-1 SP will contribute 0.85, यानी अगर मैंने 3P के बारे में पकड़ा तो 3S और 3P में जितना होगा each will contribute, उसको उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इट विल कंट्रीब्यूट 0.35 और उसके अंदर यानी N-1 यानी अभी आपका N is 3 so N-1 is 2, 2S and 2P will contribute, each electron will contribute 0.85 and N-2 will contribute 1 to the screening effect। हम लोग ने ये जस्ट कंप्लीट करने के लिए बताया है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। Okay, what is effective nuclear charge? Calculate the effective nuclear charge of some element। यहाँ पे नियॉन है, आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा Z ऑफ नियॉन एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो पहली बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली देख चुके हैं कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, आपके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंड दे रिड्यूस द force of attraction between the valence electron and the nucleus.
तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर चार्ज दिखता है वो जो उसका जो असली जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ डिक्रीज इन द force of attraction between the nucleus and the valence electrons, and the reduced nuclear charge is called the effective nuclear charge. उसका फॉर्मूला क्या है, Z effective is equal to Z minus sigma. आपको Z भी दिया है, Z is 10, sigma is 4.15. ये न्यूमेरिकल उतना आसान है. आपको क्या करना है, Z effective will be Z minus sigma, 10 minus 4.15. इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं. Which elements of the periodic table are called F inner transition elements? They are the F block elements. Write the names and symbols of at least any 2 of them. F block elements are also called inner transition. As the last electron is filled in the pre-penultimate shell. Pre-penultimate shell यानी आपका वैलेंस शेल है, उसके अंदर के जो है, जो वैलेंस शेल है वो अल्टीमेट शेल हो गया. उसके अंदर का जो शेल है उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और उसके अंदर का यानी 2 अंदर छोड़ के उसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल. तो आपका जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इट गोज इनटू द n-2. अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन n है तो n-2 में आपका f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाता है, एंड दे आर लोकेटेड बिटवीन, they occupy the position between 3rd B and 4th B group in the periodic table. Examples are thorium and uranium with the उनका symbol है TH and U. Ionization energy decreases down the group. Why? Ionization energy or potential is the amount of energy released required to remove the most loosely bound electron from an atom in its free, gaseous and ground state. Ionization potential decreases from top to bottom because within a group atomic size increases, क्योंकि शेल बढ़ते हैं, and as the atomic size increases the force of attraction between the nucleus and the valence electron reduces, therefore it becomes easier to remove the outermost electron, so the potential ionization potential decreases down the group. What is the trend of atomic size in the periodic table? This actually पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब भी है, that if you go down the group atomic, और okay यहाँ पे 2 ट्रेंड दिखाने पड़ेंगे, within the group and within the period. So top to bottom atomic size increases क्योंकि नए नए शेल ऐड होते हैं, लेकिन द इंक्रीज इन द साइज इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी शुरू में इंक्रीज बहुत होता है, बाद में वो जो इंक्रीज है छोटा छोटा होता जाता है. वो इसलिए क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट को वगैरह का असर आ जाता है. एंड विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि आपके शेल नए ऐड नहीं होते लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. Size of cation is always smaller than its parent atoms. Explain. Cation is always smaller than its parent atom because cation is formed by when the parent atom loses electrons. And in many cases, electron ही नहीं खोता है वो, it completely loses a shell. Like sodium में, sodium के electronic configuration है 1s2 2s2 2p6 3s1. जब आप सोडियम प्लस बनाते हैं it loses this one electron, but वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के चक्कर में इट हैज लॉस्ट इट्स थर्ड शेल. सो सोडियम प्लस में सिर्फ 2 शेल है, 1 और 2. सोडियम एटम में 3 शेल है, 1s 1 2 और 3. इसलिए सोडियम बड़ा होगा, सोडियम प्लस छोटा होगा. दैट्स द क्वेश्चन. द साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम. व्हाई? ये तो दोबारा आ गया. स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक नंबर्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. दूसरा पार्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. What is exchange energy, and explain it with reference to copper atom. We have already seen what is exchange energy. Is the amount of energy released when 2 or more electrons having the same spin change places within orbitals of same energy. So
फॉर्मूला क्या है एक्सचेंज एनर्जी का? एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल टू के विच इज अ कांस्टेंट n into n minus 1 divided by 2. n is the number of electrons with the same spin in the degenerate orbitals. degenerate orbitals का मतलब है orbitals with the same energy. So कॉपर के केस में देखते हैं. कॉपर हैज एन इलेक्ट्रॉन 29 इलेक्ट्रॉन्स. सो उनके दो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी सब सेम है. लास्ट के ये दो अलग हैं, 3d9 4s2 एंड 3d10 4s1. दोनों केसेस के बारे में देखते हैं. सो दोनों में एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. लेट्स डू इट फॉर केस 1 फर्स्ट. यहां पे आपके पास 3d9 और 4s2 है. 3d9 यानी 9 में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, d में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 जो है कंप्लीटली फिल्ड होंगे, एक सिंगली ऑक्यूपाइड होगा. सो अप स्पिन उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो E exchange for up spin electrons will be k into 5 into 5 minus 1 divided by 2. और डाउन स्पिन 4 होंगे, क्योंकि 9 है तो अप स्पिन वाले 5 होंगे, डाउन स्पिन वाले 4 होंगे. सो E exchange will be k into 4 minus 1, so it is 6 k. सो आप दोनों को मिला लेंगे तो आपका हो जाएगा 16 k. अब केस 2 में देखते हैं. केस 2 में आपके पास क्या है? 3d10 है, यानी 5 ऊपर और 5 नीचे. So up spin also has 5 electrons, down spin also has 5 electrons. So E exchange will be 10k for up spin and 10k for down spin. So the total exchange energy will be 20. So the total exchange energy for case 1 is 16 and 20k for second case. So क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सेकेंड केस में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, सो देयरफॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज more stable and therefore preferred. What are the rules for filling up of electrons in various orbitals? ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का ये है. अगर लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है? We have already said this. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल states that the filling of electrons in orbitals takes place in the order of their increasing energy. ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये आंसर था, एक लाइन. लेकिन अगर लंबा आया तो क्या करना है? द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय एडिंग देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर्स n plus l. Greater the value of n plus l, greater is the energy of the orbital. And if two orbitals have the same n plus l value, then the orbital with smaller value of n will have lower energy. उसके बाद आप ये ग्राफ आप ये पिक्चर दिखा सकते हैं, you know. First 1s will be filled, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, and 3, like that. Thank you very much, and I'll see you in the next video.